my dear learners of class 12, I am back again with one more video. This video is based on the critical analysis of Robert Lee Frost's poem, A Roadside Stand. Let us look at some important key points related to the life of Robert Lee Frost before going into the deep analysis of the poem. My dear, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। ये जो है अमेरिका के न्यू इंग्लैंड जो है पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पोम के थ्रू। इफ यू रीड हिज पोम्स you'll find him representing this part of America that is called New England. That's why he is known as New England poet of America. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इनके बारे में आपको पहले बता रहा हूं, उसके बाद मैं वो सारे टेक्निकल डिवाइसेस का यूज हम लोग जो भी टेक्निकल डिवाइसेस इस पोम में यूज हुए उसका हम स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज born in 1874. Remember this poet was born in 1874, and this poet just passed away at a mature age in 1963. Remember this, born 1874, died in 1963. His name of his father was William Prescott, and mother Isabella Moody, and wife Miriam Eleanor. इस पोएट ने अपने लाइफ टाइम में 4 पुलिटजर अवार्ड जीते। मीन्स he got 4 Pulitzer Award in his lifetime. Pulitzer, P-U-L-I-T-Z-E-R, Pulitzer एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो जर्नलिज्म और लिटरेचर के फील्ड में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो ये पोएट, ये राइटर अपने लाइफ टाइम में इसे 4 पुलिटजर अवार्ड मिले। पहला जो पुलिटजर मिला, इसे मिला 1924 में, दूसरा 31 में, तीसरा 37 में एंड लास्ट 43 में। तो अपने लाइफ टाइम में इसने 4 पुलिटजर जीते। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, he got 31 Nobel nominations in his lifetime, but unfortunately he could not bag this award. 31 बार इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया गया, बट ये नोबेल प्राइज जीत नहीं पाए। इन अवार्ड्स के अलावा मेनी मोर ऑनररी डिग्रीज, इन्हें कई ऑनररी डिग्रीज मिली, ऑनररी डिग्रीज, यू नो दोज डिग्रीज दैट आर सिंपली गिवन टू समवन और simply bestowed upon someone in the honor of that person or in order to give honor to that person. For that no money is paid. That is called honorary degrees. So he got many honorary degrees in his lifetime. एक मेडल भी इनको मिला, this is not correct, एक मेडल भी इनको मिला इनकी लाइफ टाइम में। वो जब ये 86 ईयर्स के थे तो इन्हें मेडल मिला अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर इस पोम के बारे में बताऊंगा कि इस पोम को हम कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। जब आप इसको क्रिटिकली अप्रोच करेंगे पोम को, देन यू विल फाइंड दैट द पोएट और द स्पीकर ऑफ दिस पोम इज समवॉट नॉट हैप्पी एट ऑल। Means he is absolutely disturbed. He is absolutely angry. He's angry with the government. He's angry with the people related to the government and related to the system and related to the administration. Why? Because इसने देखा कि जो रोड साइड वेंडर्स थे,
they were very measurable. They had been working all the time, particularly for earning a small amount of money. But unfortunately, these poor vendors at the roadside couldn't earn sufficient amount of money, particularly for making their lifestyle a little bit better in comparison with the lifestyle of the people of the city. That's why see, सिटी पीपल भी पोएट के टारगेट पे हैं. पोएट उन्हें पॉलिश ट्रैफिक कह रहा है, पोएट उन्हें सेल्फिश कह रहा है, और पोएट उन्हें कई तरह के वर्ड्स, कई तरह के नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज कर रहा है उनको कंडेम करने के लिए, यानी कि उनको क्रिटिसाइज करने के लिए. तो जो ये पोम है, दो द पोम इज नॉट वेरी लॉन्ग, बट द पोम इज ऑल अबाउट द measurable condition of the roadside vendors who had opened their stalls or who had set up their stand only for earning a little bit amount of money to raise their standard of living. And lots of people like government agencies, you can say this, people related to the government, and so many middlemen, they came and made lots of promises, but those promises never meant to be kept. तो यहाँ poet बहुत ही directly, you can say this, he is condemning, he is taking the government to task, taking the authorities to task, and taking the city people to task. City people went past those stands or those stalls, but they never ever bother themselves a little to stop for a moment and to buy something from these poor vendors to help them make their lifestyle a little bit better. तो माय डियर लर्नर्स, मैंने आपको शॉर्ट में ये चीजें बताई, इसका क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको शॉर्ट में बताया. Now let's look at the literary devices, means figures of speech used in this beautiful poem. Beautiful but a very realistic poem. See, पहली जो literary device इस poem में यूज है, that is transferred epithet. Transferred epithet, remember this. Transferred epithet में क्या होता है? इसमें जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव ADJECTIVE, एडजेक्टिव, याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव वर्ड है, हम और आप जनरली ज्यादा लोग इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी का भी साउंड करते हैं, डी का साउंड इसमें नहीं होता है, ये आपको दिमाग में रखना है. एडजेक्टिव पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है, जो जाना चाहिए किसी सर्टेन पर्सन के लिए, जिसके साथ वो फिट होती है, बट एक्चुअली ये उसके साथ नहीं जाती है, जाती है किसी लाइफलेस, किसी जो है एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी चली जाती है, लेकिन ज्यादा ये किसी लाइफलेस के साथ. जैसे यहाँ पे देखिए, पॉलिश्ड वर्ड का, पॉलिश्ड का एक्चुअली मतलब होता है वेल मैनर्ड और वेल कल्चर्ड और वेल सिविलाइज्ड, लेकिन ये पॉलिश ट्रैफिक कैसे पॉलिश हो सकती है? जैसे कि सेल्फिश, कोई इंसान सेल्फिश हो सकता है, कार कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे एक्चुअली वो पोएट यूज किसके लिए करना चाहता? उन लोगों के लिए जो उस कार में गुजरते हैं वहां से, उन दुकानों के पास से, लेकिन वो कभी वहां रुकते हैं तो दे जस्ट लुक डाउन अपॉन द शेड और द स्टैंड एंड दे मेक अ कमेंट, नॉट अ गुड कमेंट एट ऑल. तो यहाँ पे देखिए, जब भी एडजेक्टिव का ऐसा यूज होगा कि जो सही नहीं होगा, जो मिसफिट होगी, जैसे देखिए यहाँ पॉलिश यूज कर लिया गया ट्रैफिक के लिए, सेल्फिश यूज कर लिया गया है कार के लिए. तो अगर इस तरह का यूज ऑफ एडजेक्टिव यू फाइंड इन द लाइन्स ऑफ पोइट्री, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. याद रखिएगा, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है. नेक्स्ट देखिए मेटाफर. इस पोम में मेटाफर भी यूज किया गया हुआ, क्योंकि सौरों को सीधे ट्रस्टिंग कहा जा रहा है, सीधे डायरेक्टली इसको ट्रस्टिंग कहा जाए, ट्रस्टिंग सौरों. तो जब भी हम
किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, सीधे कंपैरिजन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। सीधे सीधे हम उसको दूसरे नाम से, सीधे उसको दूसरा बिना लाइक और एज का यूज करके हम कंपैरिजन कर देते हैं, तो वो हो जाता है मेटाफर। जैसे मैंने कहा कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है शिप, कैमल जो है सॉरी जो है वो डेजर्ट का शिप है। तो मैंने यहां कैमल को सीधे कंपेयर कर दिया, किससे? सीधे कंपेयर कर दिया शिप से, जो वो नहीं है। उसी तरह यहां पे सौरों को सीधे सीधे ट्रस्टिंग सौरों कहा जा रहा है। इट मींस मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। अगला जो है जो लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पे देखिएगा, अगला हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सी, OXY, ऑक्सी से मैंने लिखा आपको, का मतलब होता है शार्प, मोरॉन का मतलब होता है डल। जब दो ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं एक साथ यूज किए जाते हैं, साइड बाय साइड दे आर प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड